Hello everyone and very good morning to you all and welcome to your very own YouTube channel Math Masters. And I am right in front of you today with a new problem of JEE Advanced asked in 2015. This question is from inverse trigonometric function, that is ITF, and we are going to discuss this question right from the very basic. We are going to break this problem and start solving this problem right from the very basic, understanding the very basic concept used in solving this problem and from root to tip. So before that, I want you guys to solve this problem by yourself. Some problems need your dedication, need your time. Some good problems need your time, and that is the basic mantra of learning. That is the process of learning. You have to solve it by yourself. You have to give your time. You have to make efforts. You have to make try to give more attempts to a problem, not one attempt but more than an attempt. You have to give your time to a problem so that you will be able to learn, so that you will be able to grasp new concepts, and that will develop your skill set also, and that will help you in solving these problems, this type of difficult problems, and also the problem of your life, because skill set is very important in solving the problem in any field of your life, in academics or in any other field. Every type of problem you can solve by developing your skill set, and that will be developed by learning, by dedication, by giving your time. So uh, just pause this video and try to solve this question by yourself first. You should have that hunger, that thirst for seeing the solution of the problem, and that will only develop if you have given your own time in solving the problem, if you have made more than a attempt, and that's the way you are going to learn something. That's the way you are going to develop your skill set, and that will help you in solving some another problem. And that's the basic motive of this YouTube channel also, to develop your skill set, to make you learn some concept. So try to solve this question by yourself. Pause this video and try to solve this by yourself, and after that I'm going to explain this question. So I hope you have made an attempt. So let me start discussing the question. So question is from inverse trigonometric function. Question given is, if alpha is equal to 3 sine inverse 6 by 11, what is alpha? What is sine inverse 6 by 11? तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कि ये होता क्या है, अल्फा है क्या, बीटा क्या है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे समझना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. ये आईटीएफ का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, पर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से. जैसे कि मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री से ही समझ सकता हूँ और सॉल्व भी कर सकता हूँ. देखो कैसे, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. y इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिखा, ठीक है. y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये जो x है, ये x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स y लिख सकता हूँ. और ये मैं कब लिख सकता हूँ, ये मैं तब लिख सकता हूँ जब ये साइन x जो है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स जो ये फंक्शन है साइन x, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा. इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा. और हमें पता है कि साइन एक्स जो है एक 1 1 ऑन टू फंक्शन होता नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे. कैसे बनाते हैं, हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. हम इसके डोमेन को बोलते हैं कि बस -π/2 से π/2 ले लेते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. जो x होता है, अगर ये -π/2 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है, के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. और उसी की बात हो रही है कि ये जो x है इसमें बिलोंग कर रहा है. x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x अल्फा है और बीटा है, यानी कि ये एक एंगल है. x क्या है, एंगल है. एंगल क्या है, साइन इनवर्स y है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 6/11 और कॉस इनवर्स 4/9. ये क्या कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है. तो साइन बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, और कॉस बिलोंग करेगा 0 से पाई में. ठीक है, अच्छी बात है. तो ठीक है, अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, तो अल्फा ये है, बीटा ये है. वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लेने वाला है, बस प्रिंसिपल वैल्यू को लेने वाला है. देन द करेक्ट ऑप्शन इज और आर. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, cos बीटा ग्रेटर देन 0, साइन बीटा लेस देन 0, cos अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, cos अल्फा लेस देन 0. तो आओ समझते हैं हम लोग.
सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसको एक्सप्लेन करना बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस क्वेश्चन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, इसमें जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उसका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कैसे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने लिखा। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, तो कुछ ऐसा आने वाला है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। समझना आप लोग मैं क्या बोलने जा रहा हूं। तो ये जो है ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये x ये है, x जो वैल्यू लेने वाला है, ये वाला x बोलूं या ये वाला x बोलूं, ये है, ये एंगल है। और y क्या है, ये वाली है, ये वाला जो ये y वैल्यू लेने वाला है वो ये y एक्सिस पे उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं साइन की जो वैल्यू है बढ़ रही है। साइन की जो वैल्यू है बढ़ रही है, यानी कि y बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है हमारा y बढ़ रहा है। या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, जैसे जैसे हमारा y बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं y को बढ़ा रहा हूँ, मैंने y को यहाँ से स्टार्ट किया, ये -1 होता है, ये 1 होता है। जैसे जैसे मैं -1 से 1 की तरफ जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो x है ये भी बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे गया तो x मेरा ये है, मैं यहाँ पे गया तो x मेरा ये है, मैं यहाँ पे गया तो x मेरा ये है, मैं यहाँ पे आया, मैं अगर यहाँ पे आ गया तो x मेरा ये है, मैं यहाँ पे आ गया तो x मेरा ये है। तो जैसे जैसे y को मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा x बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन गाइस। साइन जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या का मतलब क्या होता है कि x को मैं बढ़ाऊंगा तो y की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन इनवर्स y, यानी कि जैसे जैसे मैं y को बढ़ाऊंगा मेरा x बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ y1 और मैं यहाँ पे लेता हूँ y2, अगर जो y2 है अगर y1 से बड़ा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आएगी साइन इनवर्स y1, x के बराबर साइन इनवर्स y1 और यहाँ पे साइन इनवर्स y2। तो जो साइन इनवर्स y1 होगा, साइन इनवर्स जो y1 होगा ये साइन इनवर्स y2 से छोटा होने वाला है, या फिर साइन इनवर्स y2 जो है साइन इनवर्स y1 से बड़ा होने वाला है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज मैं इसमें करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 6/11। तो जो 6/11 है ये 6/12 से तो बड़ा है ना। क्यों बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर से में डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो 6/11 बड़ा है। कॉमन सेंस, ये छोटा है तो ये छोटा है। 6/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/2 अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो। यानी कि 6/11 जो है 1/2 से बड़ा है। यानी कि अगर मैं साइन इनवर्स लगा दूं तो साइन इनवर्स 6/11 जो होगा वो साइन इनवर्स 1/2 से बड़ा होने वाला है। ओके, अच्छी बात है। लेकिन साइन इनवर्स 1/2 होता कितना है, साइन जो है 1/2 किस एंगल पे इतनी वैल्यू लेता है, तो 30 डिग्री पे लेता है, हमें पता है। और साइन इनवर्स 1/2 हो गया 30 डिग्री, यानी कि π/6। यहाँ पे तो 3 साइन इनवर्स 6/11 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 साइन इनवर्स 6/11, तो ये बड़ा होगा 3 इंटू π/6 और ये होता है π/2 से। यानी कि जो हमारा अल्फा होगा, ये तो अल्फा है ना, अल्फा जो होगा बड़ा होगा π/2 से। यानी कि अल्फा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अगर हमारा अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो साइन अल्फा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो हमारा कॉस अल्फा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो लेस देन 0 होगा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, कॉस अल्फा इज लेस देन 0, और कोई नहीं कर रहा है फिलहाल। ठीक है, ये हमने यहां से सीखा। अब हम लेते हैं बीटा को और कॉस को समझते हैं, जैसे हमने साइन को समझा। मैं इसको हटाता हूं। अगर मैं बीटा को लूं, इफ आई टेक बीटा, फॉर दैट we have to understand the cos function. For that, is cos an increasing function or a decreasing function? So let's understand, let's check. So cos इनवर्स, cos का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा मिलता है, तो cos का
जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, तो x जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से पाई को बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई में। तो 0 तो यहाँ पे होता है, ये पाई/2, और यहाँ पे बोल देते हैं पाई। तो कुछ ऐसा मिलता है, हमें पता है कुछ ऐसा मिलता है पाई में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो y cos x है, तो x क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y हो जाएगा। ओके, अच्छी बात है, x हो गया cos इनवर्स y। तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, मेरा y जो है कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, y कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या फिर मैं उल्टा बोलूं कि जैसे जैसे मैं y को बढ़ाऊं, जैसे जैसे मैं y को बढ़ा रहा हूं, y मेरा अगर यहाँ पे है तो x मेरा यहाँ पे है, y अगर मेरा यहाँ पे आया तो x मेरा यहाँ पे आया, y अगर मेरा यहाँ पे आया तो x यहाँ पे आया, y यहाँ पे आ गया तो x मेरा यहाँ आ गया और कम हो गया, y यहाँ पे आ गया तो x मेरा और कम हो गया। यानी कि मेरा अगर y बढ़ता जा रहा है तो मेरा x कम होता जा रहा है। यानी कि अगर मेरा y बढ़ता जा रहा है तो cos इनवर्स y की वैल्यू जो है कम होती जा रही है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9, तो 4/9 जो है 4/8 से तो बड़ा ही, 4/8 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। 4/9 जो है 4/8 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, और 4/8 से छोटा हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर छोटा है। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तुम्हारा जो 4/9 है वो 1/2 से छोटा है। तो मेरा अगर ये y1 y2 से छोटा है तो cos इनवर्स y1, मेरा अगर y जो है यहाँ पे बढ़ गया तो जो cos इनवर्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मेरा x कम हो जाएगा। यानी कि जो मेरा cos इनवर्स 4/9 होगा वो बड़ा होगा cos इनवर्स 1/2 से। क्यों होगा, क्योंकि y बड़ा है। अगर y बड़ा है तो x जो होगा, अगर ये मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 और 4/9 की बात हो रही है, 1/2 बड़ा है 4/9 से, तो मान लेते हैं 1/2 यहाँ पे है, 4/9 यहाँ पे है। तो आप लोग देख सकते हैं 4/9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे cos इनवर्स 4/9 की वैल्यू यहाँ पे है, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू यहाँ पे है, यानी कि cos इनवर्स 4/9 बड़ा है cos इनवर्स 1/2 से। इट कैन बी इजिली सीन फ्रॉम दैट। ओके, अच्छी बात है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारा जो cos फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो cos इनवर्स 4/9 है ग्रेटर देन है cos इनवर्स 1/2 से। और cos इनवर्स 1/2 होता कितना है, cos इनवर्स 1/2 हमारा होता है 1/2। cos की वैल्यू कब आती है, किस एंगल पे आती है, तो वो आती है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई/3 पे, पाई/3 पे आती है। और यहाँ पे बोला है कि 3 cos इनवर्स 4/9, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ग्रेटर देन 3 cos इनवर्स 4/9। और ये है हमारा बीटा, तो बीटा जो हो जाएगा 3 से 3 गया, पाई से बड़ा हो जाएगा। अगर बीटा जो है पाई से बड़ा है, यानी कि बीटा हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, साइन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो साइन बीटा जो होगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और cos बीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी नेगेटिव होता है, तो cos बीटा भी लेस देन 0 होना चाहिए। बोला है cos बीटा ग्रेटर देन 0, तो ये नहीं होने वाला है। अब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, तो अल्फा, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा हमारा आया था, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई/2 आया था, हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे बीटा आया है ग्रेटर देन पाई। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर दूं, अल्फा प्लस बीटा कर दूं, तो पाई प्लस पाई/2, यानी कि 3 पाई/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हो गया ग्रेटर हो गया 3 पाई/2 से, सॉरी 3 पाई/2। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा ग्रेटर हो गया 3 पाई/2 से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज B, C एंड D। ओके, सो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है आपने सीखा होगा कुछ इस क्वेश्चन से। मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताया, कॉस और साइन का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया, और फिर उसके हेल्प से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आपने कुछ सीखा होगा क्वेश्चन से। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।